اردو کہانی میں خوش آمدید۔ بات کریں گے ہم نفرت کے بارے میں۔ نفرت سے نفرت کیجیے کیونکہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ۔ نفرت ہمارے اندر ایک منفی جذبے کا نام ہے۔ نفرت کا آغاز ناپسندیدگی سے ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ ناپسندیدگی بڑھ کر نفرت میں بدل جاتی ہے۔ ہم اللہ کے احساس سے غافل ہو کر جب اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے ذاتیات میں پھنستے ہیں تو نفرتیں بڑھتی ہیں اور دشمنیوں عداوت جنم لیتی ہے۔ نفرت دل میں پلتی پڑتی ہے۔ دل میں کسی کے لیے منفی احساس یا سوچ آ جائے اور اس کا سدباب نہ کیا جائے تو ایسے میں انسان بعض دفعہ دوسروں کا برا چاہتا ہے۔ نفرت کا انجام دوسروں کے لیے کم اور اپنے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس سے انسان اپنی طاقت، وقت اور سوچ کو ضائع کرتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ پیار کرنے والا ہے اور ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو دوسروں سے محبت کرنے والے ہوں، نہ کہ دوسروں سے نفرت کریں۔ نفرت میں انسان دوسروں کے بارے میں صرف منفی انداز میں ہی سوچتا ہے۔ نفرت کا لیول بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلا جاتا ہے کہ انسان دوسروں کا نقصان چاہتا ہے اور کسی کو دکھ درد میں دیکھ کر اسے سکون حاصل ہوتا ہے۔ نفرت انسان کے دل میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دل میں کسی طرح کی نرمی نہ ہو، دل میں پیار کا جذبہ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے اور نفرت ہمیشہ کسی ذاتی اختلاف یا ذاتی مفاد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کی قربت کا احساس نہ ہو تو وہ اللہ کے بندوں سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ کا احساس اندر ہو تو ہم اللہ کی محبت پانے کے لیے اس کے بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور کبھی کسی سے نفرت نہیں کر سکتے۔ روزمرہ زندگی میں اکثر اپنی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے کسی کا بھلا نہیں چاہتے۔ صرف لفظوں کی حد تک ہی نہیں، ہم اس نفرت میں دوسروں کو ذہنی اور جسمانی تکلیف پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ہمارا نفس ہمیں ورگلاتا ہے اور ہم اس کے بہکاوے میں آ کر اللہ کا ناپسندیدہ عمل کرنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی کے اعمال کی وجہ سے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ نفرت گناہ سے ہو، گناہ کرنے والے سے نہیں، لیکن ہم اب بندے سے نفرت پال لیتے ہیں اور یوں اللہ کے بندے کو اصلاح کی راہ دکھانے کی بجائے اس سے دوری اختیار کر کے اس کے ساتھ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں۔ جس دل میں نفرت کی آگ ہو وہاں اللہ کا احساس اور محبت کا بیج پروان نہیں چڑھ سکتا۔ جب کسی سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم اس وقت خود غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس کی اچھائیوں اور خوبیوں کو مکمل نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم اس کا نقصان بھی ہم خود کو ہی پہنچا رہے ہوتے ہیں، جو کہ دل میں نفرت کو جگہ دینے کی صورت ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے کو اللہ کی نظر سے دیکھنے کا احساس مس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے روزمرہ کے لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی کسی نہ کسی حوالے سے ان کے لیے دل میں نفرت اور ناپسندیدگی کا احساس ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا معاملہ ہو یا بہت بڑا، لیکن اس سے دل کی حالت ضرور متاثر ہوتی ہے، جو کہ نفرت اور سختی کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ نفرت سے اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ محبت اور نفرت کے جذبے میں فرق یہ ہے کہ محبت کے جذبے سے ہم اچھا عمل کرتے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کا بھلا چاہتے ہیں اور اس کی محبت میں اس سے وابستہ رشتوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کا بھلا چاہتے ہیں۔ نفرت میں ہم کبھی دوسروں کا بھلا نہیں چاہتے، یہ ہمیشہ دوسروں کے نقصان پر اکساتی ہے اور آمادہ کرتی ہے، اور اگر ہم کسی کا ظاہری نقصان نہ کر سکیں تو دل ہی دل میں نفرت کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، جو ہمارے دل کو جلائے رکھتی ہے اور جس سے ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ دل میں شدت سے کسی کے بارے میں پسندیدگی کا احساس رکھنا
नफरत है। नफरत दिल में तब पैदा होती है जब दूसरों के लिए हमारे दिल में वुसअत ना रहे, किसी की गलती, खामी, बुरी आदत को बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह को पसंद है कि बंदे आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। जहाँ नफरत ज्यादा होगी वहाँ प्यार कम होगा, जबकि अल्लाह प्यार करने वालों को पसंद करता है और नफरत करना अल्लाह की पसंद और मर्जी के खिलाफ है। अल्लाह अपने बंदे से बहुत ज्यादा प्यार करता है और जो उसके बंदे से प्यार करता है उसे पसंद करता है। जैसे माँ उस बंदे से प्यार नहीं करती तो उसके बच्चे से नफरत करे, उसे बुरा भला कहे, ऐसे ही अल्लाह ताला अपने बंदे से नफरत करने वालों को पसंद नहीं करता। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की पसंद और मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना है और नापसंदीदा कामों से खुद को बचाना है। लिहाजा नफरत हमें हमारी जिंदगी के मकसद से दूर करती है। दिल में नफरत का एहसास पैदा होने की वजह गुस्सा, हसद और लालच भी है। रोजमर्रा जिंदगी में जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं, किसी के पास अपनी पसंद की चीज देख के हसद करते हैं और अपने पास किसी चीज की कमी महसूस करते हैं, तो दिल में नफरत का एहसास और जज्बात पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में इंसान खुदगर्ज बन जाता है और जब खुदगर्जी पैदा हो जाए तो दूसरों की फिक्र खत्म हो जाती है। अहादीस मुबारका ये है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लम ने फरमाया, आसानी करो और सख्ती ना करो और खुश करो और नफरत ना दिलाओ। नबी करीम सल्लम ने मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू मूसा को यमन भेजा। आप सल्लम ने इस मौका पर यह हदायत फरमाई थी कि आसानी पैदा करना, उन्हें सख्तियों में मुब्तला न करना, उनको खुश रखना, नफरत न दिलाना और तुम दोनों आपस में इत्तेफाक रखना, इख्तलाफ न पैदा करना। अब इस नफरत के कुछ नुकसानात हैं, जैसे नफरत से आपका प्यार खत्म हो जाता है। इस तरह दिल अल्लाह और उसके बंदों की मोहब्बत से खाली हो जाता है और प्यार से खाली दिल मुर्दा होता है। नफरत से दिल में सख्ती आ जाती है, दिल में झुकाव खत्म हो जाता है और दिल की सख्ती अल्लाह को बहुत नापसंद है। अल्लाह खुद भी प्यार करता है और अपने बंदों को भी प्यार का हुक्म देता है, लेकिन नफरत करके हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और नाफरमान बंदों में शामिल हो जाते हैं। दिलों में नफरत पैदा करना शैतान का काम है और ऐसा करके हम शैतान का साथ देते हैं और अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं। नफरत से हमारी ज़ात और मजबूत होती है और ये ज़ात ही है कि जो नफरत को ख़त्म करके छुपने नहीं देती। इस तरह नफरत से हम अपनी ज़ात को मिटाने की बजाय बढ़ावा देते हैं और अल्लाह और अपने दरमियान दीवारें खड़ी कर देते हैं। नफरत से हमारी नज़र खुद की बजाय दूसरों पर होती है। अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ देखने की बजाय दूसरों की गलती नज़र आती है, दूसरों के ऐब नज़र आते हैं और अल्लाह दूसरों पर उंगली उठाने वाले से बहुत नाराज होता है। नफरत की वजह से किसी की दिल आज़ारी में कोई आर महसूस नहीं करते। दिल में नफरत की वजह से हर वक्त मनफी ख्यालात उभरते हैं, जिसकी वजह से दिल में बेसुकूनी रहती है, दिल हर वक्त बेचैन रहता है। नफरत से दिल में बदला लेने की आग भड़कती है, जिसके रद्द अमल में इंसान हाथ पांव से किसी को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुंचाता है और मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। नफरत से लोगों में आपस में फसाद, लड़ाई झगड़ा पैदा होता है और अल्लाह ने फसाद मचाने वालों को सख्त वईद सुनाई है। इसलिए नफरत करने वालों में शामिल होकर अल्लाह को नाराज करते हैं। किसी के लिए दिल में नफरत रखना हमें अल्लाह से दूर कर रहा होता है, क्योंकि अल्लाह की कुर्बत का राज है कि अल्लाह के बंदे से बढ़ चढ़ कर मोहब्बत की जाए और अगर उसके बंदों के लिए नफरत रखी जाए तो फिर अल्लाह की कुर्बत का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। नफरत से बचने के फायदे। नफरत दिल में मौजूद हर जज्बे को जला देती है, लेकिन इससे बचकर हम दिल में प्यार को जिंदा कर सकते हैं। दिल में अल्लाह के बंदों का प्यार बढ़ता है और अल्लाह के बंदे ही अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता है। अल्लाह की मोहब्बत पाने के रास्ते में ये नफरत भरे एहसासात ही सबसे बड़ी रुकावट है। इस रुकावट को गिरा कर ही अल्लाह की मोहब्बत पा सकते हैं। नफरत को ख़त्म करके हम अपनी अना और ज़ात को मारते हैं। अना को मारकर हम अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। हम दिल से झुकना सीखते हैं, क्योंकि किसी को माफ़ करने के लिए दिल को झुकाना पड़ता है। ऐसे अल्लाह के बंदों के सामने झुकना हमें अल्लाह के सामने झुकना सिखाता है।
नफरत ख़त्म करके और माफ़ करके और हम खुद अल्लाह के रहम और मग़फ़िरत का उम्मीदवार बन जाते हैं। दिल में मुस्बत एहसास होगा तो अमल भी मुस्बत होगा। दिल में नरमी आएगी, खुश मिजाजी और खुश अखलाक़ी हासिल होगी। मनफी सोचों से बचेंगे तो हक़ की राह पर आगे बढ़ने और नेकी करने के लिए पावर मिलती रहेगी। अल्लाह की नाफरमानी से बचेंगे तो दुनिया और आखिरत में आसानी होगी, सुकून, इत्मीनान और खुशनसीबी होगी। तो साथियों, नफरत से अपनी ज़िंदगी को पाक कर दीजिए, खुद भी खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखिए। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इसी ज़िंदगी को नफरतों में गुजारने के बजाय इसको गुलजार बनाइए और खुद भी खुश रहिए और खुशियों का पैगाम बांटते रहिए। इस पैगाम को आगे शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।